Hello everyone, welcome to our channel Success Educate. I'm Prashant Jadhav. Today we are watching our next point of our second chapter, Socialism in Europe and Russian Revolution. And now I am starting my next point. What changed after October? Listen carefully and pay attention. The Bolsheviks were totally opposed to private property. जो बोल्शेविक थे वो टोटली अपोजिट यानी विरुद्ध थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के. Most industries and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. Land was declared a social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to the family requirement. तो जो बोल्शेविक थे उनका क्या कहना था कि सभी जो अधिकार है वो राष्ट्र के हाथ में होने चाहिए यानी गवर्नमेंट के हाथ में. तो गवर्नमेंट ने सभी कुछ था वो अपने अंडर कर दिया था, जैसे कि बैंक हो, इंडस्ट्री यानी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह थी वो सभी के अधिकार अपने अंडर कर दिए थे गवर्नमेंट ने. और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो सभी गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी थी. In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to the family requirement. The ban used to the old titles of aristocracy to assert the change. New uniforms were designed to the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet that was chosen. Budenka. तो बहुत से डेवलपमेंट आ चुकी थी उस वक्त सोवियत रशिया में. जो आर्मी थी उनके लिए भी कुछ ड्रेस कोड तैयार किए गए थे और वो सोवियत रशिया ने वो अडॉप्ट कर लिया था सब कुछ, यानी कुछ बदलाव अडॉप्ट कर लिए थे. द बोल्शेविक्स पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. और बोल्शेविक जो पार्टी थी वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से रीनेम हो चुकी थी, यानी उसका नामाकरण हो चुका था इन नवंबर 1917. और वो कब हुआ? नवंबर 1970 में. The Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support in January 1918. The assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. तो इसके लिए असेंबली में चुनाव हुए मगर बोल्शेविक पार्टी उसमें अपना कुछ मेजॉरिटी वहाँ पर सिद्ध नहीं कर सकी. तो क्या हुआ? लेनिन को डिसमिस कर दिया गया वहाँ से. He thought the old Russian Congress of Soviets was more democratic than our assembly elected on certain conditions. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk in the years that followed. तो इतना सब कुछ होने के बाद जो असेंबली में जो मेन जो था वो डेमोक्रेटिक पार्टी को एक इम्पोर्टेंस दिया जाता था. इन डिस्पाइट अपोजिशन ऑफ द पॉलिटिक allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections. और उस वक्त केवल एक ही पार्टी थी जो कि अपना कुछ पार्टिसिपेशन वहाँ पर दिखा रही थी इलेक्शन में. To all the Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country, Russia became a one-party state. Trade unions were kept under party control. The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD. तो कोई सीक्रेट पुलिस भी थे इसका यानी लेखा जोखा देखने के लिए. तो उनका जो नाम उनको एक नाम दिया गया था चेका, और उसके बाद OGPU और NKVD नाम से उन्हें जाना जाता था. पनिश्ड दीज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक्स. और वो जो पुलिसमैन थे वो पनिश करते थे जो कि बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते हैं.
बोल्शेविक पार्टी को. Many young writers and artists rallied the party because they stood up socialism and for change. और इस पार्टी ने सिखा दिया था कि सोशलिज्म का पावर क्या होता है. आफ्टर अक्टूबर 1917 these led to experiments in arts and architecture. और कुछ 1917 के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट यानी कुछ प्रयोग किए गए किस यानी किस फील्ड में, जैसे कि आर्किटेक्चर और आर्ट्स यानी कला और वास्तुशास्त्र में कुछ प्रयोग किए गए. बट मेनी बिकम डिसोल्यूशन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज्ड. मगर ये जो एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत से सफल नहीं हुए क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप एंड द पार्टी इनकरेज्ड. और ये सभी डिपेंड किस पर करता था, पार्टी के सेंसरशिप और इनकरेजमेंट यानी उसका प्रोत्साहन, पार्टी का प्रोत्साहन, इन बातों पर वो डिपेंड करता था. तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि बॉक्स 3 जो है वहाँ पर हम देखेंगे द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड 2 व्यूज़. तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन का कंट्री साइड पर यानी जो देहात थे यानी जो गांव थे वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम यहाँ पर देखेंगे. तो उसके बारे में 2 व्यूज़ है. न्यूज़ ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25, 1917 reached the village the following day was greeted with enthusiasm. To the peasants it means free and end of the war. और उस क्रांति से क्या हुआ, तो पीजेंट्स फ्री हो चुके थे यानी उनको कुछ अधिकार मिल चुके थे उस क्रांति के कारण. The day the news arrived, the landowner's manor house was looted. His stock farms were requised, and his vast orchard was cut down and sold to peasants for wood. तो जो लैंड ओनर्स थे उनके जो अधिकार थे वो समाप्त हो चुके थे उस वक्त. सभी कुछ जो था वो लोगों में बांट दिया गया था यानी पीजेंट्स को भी अधिकार मिल चुके थे ज़मीन के. पीजेंट्स यानी जो मजदूर है उन्हें पीजेंट्स कहते हैं. ऑल हिज फार्म बिल्डिंग्स वीआर टर्न डाउन and left in the ruins while was distributed among the peasants who were prepared to live a new Soviet life. तो उनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो ध्वस्त कर दी गई और केवल उनके पार्ट यानी जो भाग थे वो ही अब वहाँ पर रह चुके थे और सभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जो पीजेंट्स थे उनके उन सब में. तो एक नया वातावरण रशिया में पैदा हो चुका था समान अधिकार का. फ्रॉम फेडरल बेलो द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फार्म. तो फेडरल बेलो ने अपनी जो पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फार्म, इसमें ये सब कुछ लिखा है. अ मेंबर ऑफ ए लैंड ओनिंग फैमिली रोट टू रिलेटिव अबाउट द हैपेंड एट द स्टेट. तो क्या क्या स्टेट में घटित हुआ ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है. द coup happened quite painlessly, quietly and peacefully. The first days were unbearable. Mikhailevich, the estate owner. तो ये कौन है? Mikhailevich estate owner है यानी मालिक है. Was claimed. The girls also, I must say, the chairman behaves correctly and even politely. तो वो क्या कहते हैं, चेयरमैन जो है तो वो कैसे बिहेव करते हैं, करेक्टली और पॉलिटली, बहुत ही नम्रता से वो बिहेव करते हैं. वी आर लेफ्ट 2 cows and 2 houses. हमारे पास केवल 2 गाय और 2 हॉर्स यानी घोड़े बचे हैं. द सर्वेंट्स टेल देम ऑल द टाइम नॉट टू बॉदर अस. और सर्वेंट्स ने क्या कहा है, नौकर ने क्या कहा है, नौकरों को क्या कहा है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बॉदर नहीं करना. बॉदर यानी उनको यानी किस प्रकार का टेंशन नहीं देना, उनको फ्री रखना. लेट देम लाव एंड द वॉच द सेफ्टी एंड प्रॉपर
property. We want to them treated as a humanly as possible. तो उन प्राणियों को भी humanly and possibly, यानी उन्हें भी कैसे जीने का अधिकार है, ह्यूमनली यानी मानव जैसे जीते हैं उन प्रकार की जो जो रहने की पद्धति है, जीने की पद्धति, वैसे उनको भी मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था. There are numerous rumors that several villages are trying to evacuate the communities and the East State Mikhailovich. और ये डेवलपमेंट का काम उस वक्त बढ़ रहा था मिखाइलोविच के अधिकार तले. I don't know it will happen or it is good for us, but we rejoice that there is a conscience in our people. तो उन्होंने कुछ करने की ठानी थी अपनी ओर से और उनका जो sage segment, he chose the native land 2 centuries of Russian village 1997. तो ये सब कुछ हम यहाँ पर देख चुके हैं. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.